الجهادي ISIS کا لیڈر ISIS propaganda video قدموا الأرواح حقا بثبات ويقين دولة الإسلام قامت بجهاد المتقين. ان کے پروپیگنڈا پر ہالی ووڈ ایکشن فلمز اور بچوں کے کمپیوٹر گیمز کا کافی اثر نظر آتا ہے. آئسس چاہتا ہے کہ اگر وہ کئی اینگل سے ایک ہائی پروڈکشن ویڈیو کو شوٹ کرتا ہے، اگر اسے کوئی سفید چمڑی والا شخص مل جاتا ہے اور وہ اسے گوینتنامو سٹائل کا اورنج جمپ سوٹ پہناتے ہیں، اس کے بعد وہ کسی بچے یا انگریزی بولنے والے کسی شخص سے اس کا سر چاقو سے کاٹنے کو کہتے ہیں، تو وہ اچھے سے جانتے ہیں کہ بے شک اس فلم کو اس رات مین سٹریم ٹی وی پر شاید نہیں دکھایا جائے گا، لیکن فلم کی سٹوری دنیا میں ہر کہیں ہیڈ لائن بن ہی جانے والی ہے. آج کی بریکنگ نیوز میں دیکھیے ایک چیلنگ نیو آئسس پروپیگنڈا ویڈیو. شاید یہ لوگ سیرین ہیں اور انہیں جمپ سوٹس پہنائے گئے ہیں. اس ویڈیو میں ایجپشین پرزنرز کو ایک بیچ پر لے جایا جا رہا ہے اور ان کالی ڈریس پہنے ملیٹنٹس نے ان قیدیوں کے سر بڑی بے رحمی سے کاٹ دیے. اسی دن اسد کے بارے میں کوئی بات نہیں کرے گا. بے شک اس نے آج ہی بیرل بامز کے ذریعے 100 لوگوں کو ختم کر دیا ہو، پر یہ لوگ مرتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. ان کی کسی نے کوئی ہائی پروڈکشن ویڈیو نہیں بنائی ہوگی اور نہ اس کے بعد ویسٹ کو کوئی دھمکی ہی دی ہوگی. ان لوگوں کے دشمنوں کے دل میں خوف بھرنے کے لحاظ سے یہ ویڈیو بہت اثردار ہے، کیونکہ ان لوگوں کے ہاتھوں پکڑے جانے کا خیال ہی باڈی میں کپکپی پیدا کر دیتا ہے. اینا ایرل نے نام بدل کر آن لائن آئسس جوائن کرنا چاہا تاکہ وہ ریکروٹنگ ٹیکنیکس جان سکے. انہوں نے اپنی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ ہاں پوچھو. کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کتنے کافروں کو مارا ہے؟ ہاں بہت. ہاں میں نے بہت مارے ہیں. جو لوگ بھی اسلامک اسٹیٹ کو چلاتے ہیں وہ خطرناک ہیں. وہ بے شک خود کو ایک ریلیجس آرگنائزیشن کہتے ہیں، اونچی اونچی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک آرگنائزیشن کے طور پر وہ کس طرح کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ ان کے کام کاج کا طریقہ بالکل کسی کرمنل آرگنائزیشن جیسا ہے. وہ لوگوں کو مارتے ہیں، ان کے پیسے چھین لیتے ہیں اور ایسے ہی وہ لاکھوں ڈالر جمع کر لیتے ہیں. آئسس نے جہاں بھی اپنا قبضہ جمایا وہاں بہت انٹرفیئر کیا. میرے پاس اولیو کے پیڑ ہیں اور جب تک میں اسلامک اسٹیٹ کو پیمنٹ کا پروف نہیں دوں گا مجھے اپنے ہی پیڑوں سے اولیو توڑنے کی اجازت نہیں ملے گی. یہ جن بھی علاقوں میں گئے انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ فلاور مل، بیکری اور کنکریٹ فیکٹری وغیرہ کو بنا کوئی نقصان پہنچائے اپنے کنٹرول میں لیا. یہ اس بات کا بہت دھیان رکھتے تھے کہ اس علاقے کے انفراسٹرکچر کو قائم رکھنے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے. وہ کار ڈیلر سے زبرن ٹیکسز وصولا کرتے تھے اور اگر کسی کے پاس بلڈنگ ہے تو اس کی کمائی کا حساب لگا کر اس پر بھاری بھرکم ٹیکس لگاتے تھے اور یہ ٹیکس قریب 30 سے 40 لاکھ لیرے ہوتا تھا. انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز سے پروفٹ کماتے تھے. مثال کے لیے عراق میں موجود کسی پولیس مین اور سینکوں سے وہ کہا کرتے تھے تم کافر ہو، اصولاً تمہیں مرنا ہوگا، لیکن تم ایک فرگیونیس کارڈ خرید سکتے ہو. فرگیونیس کارڈ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی غلطی پر افسوس ہے اور چیک پوائنٹ پر یہ کارڈ دکھانے سے لوگ جان جاتے ہیں کہ آپ کو معاف کر دیا گیا ہے. اس لیے ہر کوئی $400 میں ایک فرگیونیس کارڈ خرید لیتا تھا. کچھ مہینے بعد پھر یہ فرمان آتا تھا کہ آپ کا فرگیونیس کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہے، آپ نیا خریدیے لیکن اس بار قیمت زیادہ ہوگی. یعنی ہر چیز مہنگی ہوتی چلی جاتی تھی. سیریا کے زیادہ تر لوگ آئسس کو دوسرے دیش سے آئی ایک آکیپیشن فورس مانتے تھے. جنوری 2014 میں فری آرمی، اسلامک فرنٹ ملیشیاز اور القاعدہ نے آئسس کے خلاف لڑائی چھیڑ دی. دی احرار الشام ملیشیا
संघाई सिटी है जिसे आईएसआईएस के नापाक कब्जे से आजाद करा लिया है। अल्लाह हमारे साथ है। हमारी सभी फाइटिंग टीम्स ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया। इन लोगों ने आईसिस को पूरे वेस्टर्न सीरिया से बाहर निकाल दिया, लटाकिया से, इडलिब और अलेपो से। लेकिन तब इराक क्योंकि बहुत ज्यादा डिसफंक्शनल हो चुका था, क्योंकि इराक में सुन्नी अरब्स काफी एलियनेट हो चुके थे, तो इराक के लोगों ने या कुछ लोगों ने इनकी वापसी पर इन्हें वेलकम किया। इन लोगों ने इराक में अपना बड़ा हमला शुरू कर दिया। इन्होंने मोसूल, टिक्रिट, सरगाट, हवीजा पर कब्जा कर लिया। साथ ही करीब 4 इराकी आर्मी डिविजन्स के वेपन्स डिपो पर भी इनका कंट्रोल हो गया। यानी इनके पास हथियारों की कोई कमी नहीं थी। जो हथियार ये अपने साथ नहीं ले जा सकते थे उन्हें तबाह कर दिया। लेकिन अब ये पूरी आर्मी बन चुके थे। हमवीज, स्ट्राइकर्स और टैंक्स थे इनके पास। रक्का, जून 2014 इन्होंने इराक के नॉर्थ में मौजूद बैंक से सारा पैसा लूट लिया और फिर इस पैसे और हथियारों के बल पर फिर से सीरिया में ये लोग घुस गए। यहाँ इन्होंने इस देश के काफी बड़े हिस्सों पर फिर से कब्जा कर लिया। इस वक्त पीक पर थी इनकी पावर और इन्होंने इस मौके पर डिक्लेयर किया अपना कैलिफेट। ये है हमारा कैलिफेट। लीडर है हुरैश ट्राइब के शेख अबू बकर अल बगदादी। इसका इलाका इस वक्त भी ब्रिटेन से बड़ा है। इसका साइज बेल्जियम से 8 गुना ज्यादा है और कतर से 3 गुना बड़ा। हम इस्लाम के नुमाइंदे हैं और जिहाद करने के लिए इसकी पीक तक पहुंच चुके हैं। हम एक झंडे तले एकजुट होते जा रहे हैं और हम नहीं रुकेंगे। ईसा मसीह के जन्म के कुछ ही सदी बाद मुस्लिम वर्ल्ड फैलने लगा। ये लोग आर्ट्स, साइंस और एस्ट्रोनॉमी में काफी तरक्की हासिल कर चुके थे और देखा जाए तो ये लोग वाकई दुनिया में सेंटर ऑफ नॉलेज थे। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु। जाहिर है ये लोग ग्लोरी वाले उन्हीं दिनों की तरफ लौटना चाहते थे। ये अक्सर पश्चिम के देशों से आने वाले डिक्टेटर्स के जुल्म सितम को झेलते थे और इन पर वेस्टर्न टेक्नोलॉजी और वेस्टर्न कल्चर पूरी तरह हावी हो चुका था। आईसिस जो कुछ कर रहा है वो कैलिफेट की पहले वाली ग्लोरी को फिर से हासिल करने की कोशिश है। वो चाहता है कि कई सदी पहले दुनिया में मुस्लिम सोसाइटी का जो दबदबा था वो फिर से कायम हो जाए। इराक से आज मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसिस आर्मी और दूसरी सुन्नी मुस्लिम फोर्सेस ने एक और बड़े टारगेट को कैप्चर कर लिया है। ये है बेजी के ऑयल रिफाइनरी, जहां इराक के 1/3 ने सीरिया में एक बड़े ऑयल फील्ड पर कब्जा कर लिया है। रोजाना 75,000 बैरल ऑयल प्रोड्यूस होता है। कॉन्फ्लिक्ट के शुरुआती दिनों से ही एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर वाले इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने पर ध्यान दिया जा रहा था। वो प्राइमरी फोकस था क्योंकि उससे रेवेन्यू तो मिलता ही था। साथ ही ये एहसास भी होता था कि ये फोर्स किसी सरकार की तरह नेचुरल रिसोर्सेज, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल और कुकिंग ऑयल वगैरह मुहैया करा सकती है। इनके पास कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें इस काम में महारत हासिल थी। लोकल इलाकों में ऐसे बहुत से सीरियंस थे जो कई डेकेड्स तक इन ऑयल फील्ड्स में काम कर चुके थे। यूं तो इन लोगों के पास सीरिया का कम जमीनी इलाका था, लेकिन इनके पास ऑयल और गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और फील्ड्स का बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद था। ये बाकियों के मुकाबले बहुत बड़ा था। हमारी रिसर्च के मुताबिक उस वक्त रोजाना तकरीबन 45,000 बैरल तेल प्रोड्यूस हो रहा था। यानी आईसिस के लोगों को रोजाना तकरीबन $20 लाख की आमदनी हो रही थी। इसके खरीदार कौन है? हजारों बैरल ऑयल बॉर्डर्स के आर पार कैसे जाता है? तेल की खरीदारी और बिक्री कैसे होती है? इसके अलावा करेंसी एक्सचेंज का मामला भी है। यानी बाकी दुनिया और इंटेलिजेंस के बीच कोई ना कोई गठजोड़ तो जरूर होगा। ट्रकों की लंबी लंबी कतारें दिखती थी। ये ट्रक कहीं तो जाते होंगे। ये मामला बड़ा कंट्रोवर्शियल है। कुछ लोगों का कहना है कि ये टर्की जाते थे, जबकि टर्क्स इससे इनकार करते थे। कुछ लोग तो इसे एक पाइपलाइन भी बताते हैं। ये ट्रकों का कोई मामूली काफिला नहीं था, बल्कि एक ऑयल पाइपलाइन थी।
आईसिस एक अलग ही कॉम है। इनके पास बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं और क्रूड ऑयल की स्मगलिंग इस पोर्टफोलियो का ही हिस्सा है। इनके काम में हथियारों की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग और एंटीक्विटीज की स्मगलिंग भी शामिल है। सिर्फ सीरिया में ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके में एंटीक्विटीज को लूट लेना एक पुराना सिलसिला रहा है। मुश्किल वाले दौर में मालूम है लोग क्या करते हैं, वो इनकम का एक दूसरा जरिया ढूंढ लेते हैं और जब उनकी मर्जी होती है इस तरह की लूट मचाते रहते हैं। देखिए, मैं दोनों के $55,000 लूंगा। इन दोनों के 55,000? हाँ जी, दोनों के। यूरोप के किसी शख्स ने इन्हें कभी नहीं देखा है। नहीं, किसी ने नहीं। इस्लामिक स्टेट ने लूट के इस प्रोसेस को इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया। उन्होंने इसे सरकार का ही एक हिस्सा बना लिया है। जो कोई भी एक्सकवेशन करना चाहता है उसके लिए उसे ऑफिस ऑफ एंटीक्स जाकर एक परमिट लेना पड़ता है। अगर उन्हें कुछ मिलता है तो उसका 20% हिस्सा इस्लामिक स्टेट को देना पड़ता है। लूटिंग का ये काम जब और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड होता गया तो फिर लोगों को हैवी मशीनरी लाने के लिए भी परमिट मिलने लगे। ऐसी ऑक्शंस होने लगी जिनमें लूटी हुई चीजें बिका करती थी। इतिहास जाए भाड़ में, मुझे तो चाहिए ज्यादा मटेरियल, ज्यादा कैनी फोम्ड टैबलेट्स, ज्यादा सिलेंडर सील्स। यानी मुझे पैसे से मतलब है। लालच की कोई भी सीमा नहीं होती है। सिर्फ सीरिया से ही आईसिस ने लाखों डॉलर्स कमाए। बेशक आपको लाखों डॉलर की रकम ज्यादा ना लगती हो, लेकिन किसी आईडी की कीमत कितनी होती है? 7.62 mm की बुलेट्स की क्या कीमत होती है? ऐसी 50 बुलेट्स कितने की मिलती है? और कोई के 47, कोई आरपीजी कितने में आता है? $10 लाख में कितने आरपीजी खरीद सकते हैं? आईसिस को कल्चरल हेरिटेज, पैसा कमाने का बहुत बड़ा जरिया नजर आया। वो हर वो चीज लूटने लगे जो बिक सकती थी, लेकिन इसका एक बुनियादी पहलू प्रोपेगेंडा भी था। जब आप लोगों की कल्चरल हेरिटेज को तबाह कर देते हैं तो एक तरह से आप उनकी कल्चरल आइडेंटिटी पर हमला करके उसे बर्बाद करते हैं। जब उनकी कल्चरल आइडेंटिटी बर्बाद हो जाती है तो बहुत जल्दी ही उन लोगों का भी नामो निशान मिटाया जा सकता है। सिंजार इस्लामिक स्टेट की सेल्फ प्रोक्लेम राजधानी है जो मोसूल, इराक और रक्का के सभी हाईवेज को जोड़ता है। ये इलाका एंशिएंट रिलीजियस ग्रुप यजीदीज का घर है। उन्होंने लोगों को एक लाइन में खड़ा किया और बोला कि कौन कौन यजीदी हैं वो एक तरफ खड़े हो जाएं और जो बाकी हैं वो दूसरी तरफ चले जाएं। और फिर उन लोगों ने उन सभी यजीदी मर्दों को अलग कर दिया और फिर उन सबको मार दिया और वो औरतों को अपने साथ ले गए। ये एक दिल हिला देने वाला सीन था। लोगों को जानते बूझते हुए कत्ल किया गया। बीते दौर में सिर्फ नाज़ियों ने ही जूस को इस तरह मारा था। इसके नतीजे में 5,000 लोग या तो शहीद हो गए या गुमशुदा है और 5,877 लड़कियां, बहनें और बच्चे किडनैप कर लिए गए। यजीदी रिलीजियस माइनॉरिटी के हजारों लोग भागकर इस पहाड़ी पर आ गए ताकि आईसिस के मिलिटेंट से अपनी जान बचा सके जिन्होंने हाल ही में सिंजार कस्बे पर कब्जा किया है। प्लीज मिस्टर स्पीकर, हमारे लोगों को भी बाकी इराकियों की तरह कत्ल किया जा रहा है, जैसे शिया, सुन्नीस और क्रिश्चियंस, तुर्कमान और शबक को मारा गया और आज यजीदीज। पिछले 48 घंटे से हमारी 30,000 फैमिलीज सिंजर माउंटेन पर फंसी हुई है। हमारे पास न पानी है न खाना, हम मर रहे हैं। कर्दिश रीजनल गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया के सामने ये बात रखने की कोशिश की कि इस पहाड़ पर हजारों यजीदीज भूखे और प्यासे मौत का इंतजार कर रहे हैं। ये मामला बिल्कुल बाइबल के मसादा जैसा था।
लोग 50 डिग्री टेम्परेचर में पहाड़ पर फंसे हुए हैं, उनके पास पानी नहीं है, और इन पहाड़ों को घेरे बैठे हैं जिहादीज जो इन सबको मारना चाहते हैं। सिंजर के येजिदीज और सद्दाम के बेहद वफादार सुन्नियों के बीच पुराना झगड़ा, पुरानी नफरत मौजूद है। ये लोग ये इंश्योर करना चाहते थे कि येजिदीज लोग इस इलाके में फिर कभी न बस पाए। انشروا البشرى جميعا وانثروا أغلى الورود وارفعوا इनका एक स्लोगन है कि हम जिहादी हैं और वेस्ट में आप लोग जिंदगी से जितना प्यार करते हैं हम उससे भी ज्यादा मौत से मोहब्बत रखते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कहीं ये सिरफिरे तो नहीं है, सिर्फ बददिमाग लोग ही इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से लड़ने का कोई रास्ता नहीं है जो अपने स्ट्रगल को ऐसी शक्ल दे देते हैं और ऐसा करते वक्त सोशल और हिस्टोरिकल जस्टिस की तरफ ध्यान ही नहीं देते। इनके लिए म्यूजिक हराम है, लेकिन नशीद के लिए ये अलाउड है क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज नहीं होते। नशीद रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं जिनमें कत्ल के लिए भगाया जाता है और ये लोग से दिन रात सुनते हैं। जो लोग आईसिस से पीछा छुड़ाकर वापस आते हैं वो बताते हैं कि नशीद ने कैसे उन्हें कट्टर बनाया, ठीक वैसे ही जैसे फ्रेंच नेशनल एंथम ने अपने वक्त में सैनिकों के साथ किया था। मुझे लगता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान भी ये इसी तरह का आइडियलिज्म मौजूद रहा होगा। ये इस बात को मानते हैं कि ये लोग एक हिस्टोरिक मोमेंट में हिस्सेदार हैं।